Prime Minister Modi has reached Patna ahead of that big rally in Muzaffarpur. Let's cut across live now. कितना फायदा हो सकता है तो सोचिए इस संकट की स्थापना से हमारे नागरिकों को कितनी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर दाम पर और उनकी जरूरतों के हिसाब से पहुंचाई जा सकेगी। एक छोटा सा आइडिया जो मिला सकता है। इलेक्ट्रॉनिक लेट्स बहुत धन्यवाद जी। और अब बढ़ेगी पवित्र ऊर्जा गंगा। आशाओं अभिलाषाओं से भरपूर बिहार का अब होगा अधिकार ऊर्जा की उमंग पर। उर्वरक कारखानों को जीवन मिलेगा, बिहार के किसानों को मिलेगी लहलहाती फसलें। गृहिणियों का खास ध्यान रखा गया है, उन्हें मिलेगी नल पानी की तरह ईंधन गैस सीएनजी के द्वारा। All right, the two arch rivals, Nitish Kumar, the Chief Minister of Bihar, and Prime Minister Modi sharing the dais in Patna. Remember, the Prime Minister is going to be making announcements for several SOPs ahead of the Bihar polls later this year. This is his first rally and he is sounding the poll bugle for Bihar. It's a crucial state for BJP. It's a state where the BJP is not leaving any stone unturned as far as getting the maximum number of votes. 185 plus is their campaign for Bihar. That's Prime Minister Narendra Modi sitting along with Bihar Chief Minister Nitish Kumar. Remember, later in the day, the Prime Minister will be moving to Muzaffarpur, where he's holding a big rally. There are about 5 lakh people who are expected for the rally. There have been several rounds of security checks that have been conducted at the Chakkar Maidan, where that rally will be conducted. That's because there are reports of a perceived threat to the Prime Minister at that rally. Even as we speak, a second round of security checks was being carried out. In fact, 3 people were detained early this morning as suspects, and they have divulged some information to the police, after which the second round of security checks were being conducted and are still being conducted at Chakkar Maidan. Also, the Prime Minister will be making several SOP announcements in Bihar in view of the elections. In fact, what we know at this point in time is that the Prime Minister at this point is in Bihar, after which Patna, after which he'll be moving towards Muzaffarnagar. There are some SOPs that will of course be announced in Patna itself, but several of the bigger ones will be announced in Muzaffarpur. This is the Prime Minister's first rally in the run-up to Bihar elections today, which will mark the beginning really of a high decibel campaign that will be unleashed by the BJP-led NDA, where a show of strength by top leaders of the alliance, including Ram Vilas Paswan, Upendra Kushwaha and Jitan Ram Manjhi, they will all be sharing the stage with the Prime Minister in Muzaffarpur. Hectic preparations, as we've already pointed out, are on in the Chakkar Maidan, where over 5 lakh people are at least expected to turn up today for that big rally. Reviewed after 3 suspects were detained early morning today from Muzaffarpur, and we can show you here, like again, the bomb disposal squads and the dog squads has been called inside the location, inside the Chakkar Maidan, and once again searches are being carried out here. See, several security agency personnel are here, with dog squads are here, bomb detection team is here, and searches are being carried down across the length and breadth of Chakkar Maidan to ensure that there is nothing untoward that is found here at this venue, because there is a terror threat at this rally, and the Intelligence Bureau has also given an input 10 days back to the Bihar police of such a terror input, and that is why massive security deployment has taken place at the Chakkar Maidan. और हमारे पुराने प्रिय साथी श्री किशोर यादव
इस सभा में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, विशेष अतिथिगण, सम्मानित नेतागण, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी यहाँ उपस्थित अधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी यहाँ उपस्थित अधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री के रूप में बिहार में पहली बार आने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, बिहार सरकार की तरफ से स्वागत करता हूं और बिहार के लोगों की तरफ से स्वागत करता हूं। आज आगमन के अवसर पर अनेक योजनाओं का शिलान्यास किया गया है और उद्घाटन किया गया है। मैं इसके लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आईआईटी पटना ने काम 2008 से करना प्रारंभ कर दिया। हम लोगों ने एक बहुत ही उपयुक्त जगह आईआईटी को काम प्रारंभ करने के लिए दी और उस समय जितने नए आईआईटी का गठन किया गया था उसमें से बिहार में जो सुविधा दी गई आईआईटी के काम प्रारंभ करने के लिए वह सर्वश्रेष्ठ थी। इसके बाद इनकी 500 एकड़ जमीन की मांग थी। हम लोगों ने उस मांग को पूरा किया और राज्य सरकार ने अपनी तरफ से 500 एकड़ जमीन का योगदान आईआईटी पटना के लिए किया और अब उसका अपना परिसर बनकर तैयार है। आज उसका विधिवत उद्घाटन हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा एक विनम्र सुझाव है कि 500 एकड़ जमीन में फैला हुआ ये विशाल परिसर है, लेकिन अभी कुछ ही विषयों की पढ़ाई हो रही है। अब चूंकि इनका परिसर विशाल है, मेरा विनम्र आग्रह होगा कि अब इसके ब्रांचेज बढ़ाए जाएं। जैसे एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग की पढ़ाई होनी चाहिए। दुनिया भर में जो एग्रीकल्चर और फूड का विकास हो रहा है इस क्षेत्र का, और यह मांग तो सदैव रहेगी। जब तक लोग इस धरती पर हैं तब तक एग्रीकल्चर की, फूड की मांग रहेगी और बढ़ती रहेगी। इसलिए उससे संबंधित जो इंजीनियरिंग है उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई होनी चाहिए। आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग की पढ़ाई अभी नहीं हो रही है, उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। और इसके अलावे मेरा एक विनम्र सुझाव है कि इस आईआईटी में प्योर साइंस की भी पढ़ाई होनी चाहिए, उसका भी कोर्स होना चाहिए और एमबीए की भी पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। बिहार आपदा प्रवण इलाका है। एक साथ बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ता है। भूकंप के दृष्टिकोण से भी पूरे बिहार को अगर आप देखें तो साइस्मिक जोन 5 और 4 में ये आता है। इसलिए भूकंप रोधी पर काम होना चाहिए। थोड़ा काम एनआईटी पटना में हो रहा है, लेकिन आईआईटी पटना में अगर यह काम हो, और इसके अलावे जल विज्ञान पर, बांध पर भी इस आईआईटी पटना में काम होना चाहिए। अगर इस विषय पर ध्यान दिया जाए तो आईआईटी पटना का लाभ बिहार की युवा पीढ़ी को और ज्यादा प्राप्त हो सकता है, देश को इससे प्राप्त हो सकता है। यहां जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इनक्यूबेशन सेंटर, जिसका एक हिस्सा है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्यूबेशन सेंटर, आज आपने उसका भी शिलान्यास कर दिया है। बड़ी खुशी की बात है। नई पीढ़ी के लिए यह बहुत ही उपयोगी होगा। इसलिए राज्य सरकार ने इस कार्य हेतु जो धनराशि की आवश्यकता है उसका 53%
अपनी तरफ से योगदान दे दिया है, उसकी हम लोगों ने स्वीकृति कर दी है। एक बहुत अच्छी बात हो रही है गेल इंडिया के द्वारा पाइपलाइन बिछाने की। ये जरूरी है, बहुत जमाने से हम लोग सुन रहे हैं। और 2013 के 23 अक्टूबर को गेल इंडिया के साथ बिहार सरकार का समझौता हो चुका था। और अब ये खुशी की बात है, जब श्री रामविलास पासवान जी केंद्र में केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे, उस समय ही बरौनी फर्टिलाइजर कारखाने को फिर से चालू करने की बात हुई। और उसको चालू करने के लिए राज्य की सरकार ने जो उसके ऊपर बिजली का लगभग 300 करोड़ रुपए का बकाया था उस बंद उद्योग पर, इसको राज्य सरकार ने माफ कर देने का फैसला किया था कि वो बोझ राज्य सरकार अपने ऊपर लेगी। और तब से ये अटका पड़ा था। अब उसके निर्माण का कार्य शुरू हो, हम लोगों को बड़ी खुशी होगी। सिर्फ हम धर्मेंद्र प्रधान जी भी बैठे हुए थे, इनको मैंने कहा कि भाई प्रधान जी अब आप बिहार के ही हैं, इसलिए अभी जो 2 फेज में, फेज 1 और फेज 2 में जितने जिले गैस पाइपलाइन से कवर्ड हो रहे हैं, उससे लगभग 63% इलाके हमारे बचे रह जा रहे हैं। तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि अब तो बिहार के ही हैं, वैसे भी उड़ीसा और बिहार एक ही प्रांत रहा है, तो आप इस पर जरा मेहरबानी करिएगा और जितनी जल्दी हो सके, काम हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, काम तो शुरू हो रहा है, लेकिन इसके बाद इसी बात का ध्यान रखिएगा कि बाकी 63% इलाके में भी ये काम हो जाए। एक व्यक्तिगत अनुरोध हम करना चाहेंगे, सुरेश प्रभु जी से मैंने किया है, माननीय रेल मंत्री जी से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात में थे तब रेल मंत्री के रूप में अनेकों बार आपके यहाँ जाने का, आपके साथ कार्यक्रम में शिरकत करने का अवसर मिला था। तो ये जो दनियामा और बिहार शरीफ रेल खंड का आज उद्घाटन हो रहा है, ये बहुत पहले से बन रहा था। और अगर सच पूछिए तो आदरणीय अटल जी के सरकार के समय अगर 6 महीना पहले चुनाव कराने का फैसला नहीं हुआ होता तो ये 2004 में चालू हो गया होता। लेकिन यह एक छोटा सा खंड है, मटेरियल मॉडिफिकेशन में हमने अप्रूव किया था। इसको जाना है बिहार शरीफ के आगे बरबीघा होते हुए शेखपुरा और दूसरी तरफ दनियामा से दानापुर के बगल में नेवरा। ये पूरी रेल लाइन, और ये पूरी जो रेल लाइन है वो क्यूल से दानापुर की लाइन का तीसरा लाइन है। ये डबल लाइन है, मेन लाइन है वो, लेकिन ये तीसरा लाइन है। इस पर यातायात बहुत बढ़ गया है, तो तीसरा लाइन बनाने के दृष्टिकोण से इसको मंजूरी दी गई थी। और माननीय सुरेश प्रभु जी को मालूम होगा, ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है इसका रेट ऑफ रिटर्न 14.4% है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बहुत कम रेलवे प्रोजेक्ट का इतना बढ़िया रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो मैं आग्रह करूंगा विनम्रता पूर्वक कि अब बाकी का जो खंड है, दनियामा से नेवरा एक तरफ और दूसरी तरफ बिहार शरीफ से शेखपुरा बरबीघा होते हुए उसको पूरा कर देंगे, तो ये 3rd लाइन भी होगा। और आज जो क्यूल से दानापुर की दूरी है उसमें कमी भी आएगी। ये 3rd लाइन है। इस दृष्टिकोण से मेरा विनम्र आग्रह है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत हो रही है, बहुत अच्छी पहल है। आप सबको मालूम है कि बिहार में जो इवैक्यूएशन की क्षमता थी पावर की, वो 1000 मेगावाट से कम थी, और अब हमारी क्षमता बढ़कर 4500 मेगावाट की हो गई। और इस योजना के होने से और राज्य सरकार अपनी तरफ से भी जो सब कुछ कर रही है, ग्रिड स्टेशन, सब स्टेशन, इन सब चीज़ों का निर्माण हो रहा है, उससे बिजली को पहुंचाने में सहूलियत होगी। और इस योजना के आने से, इसलिए इस योजना में, केंद्र प्रायोजित इस योजना में राज्य सरकार ने भी 40% का अंशदान दिया है। और हम बहुत ही उत्सुक हैं, ये जितनी तेजी से काम होगा उतनी तेजी से बिहार में बिजली के संचरण और वितरण की प्रणाली और इंप्रूव करेगी। मैं इस अवसर पर एक ही दरख्वास्त करूंगा, चूंकि हमारे पीयूष गोयल जी भी बैठे हुए हैं, बिजली मंत्री जी। देखिए, बिहार की अपनी परियोजना बरौनी की है, 250 मेगावाट की 2 योजना, उसके रिनोवेशन मॉडर्नाइजेशन का काम वर्षों से चल रहा है।
और उसके लिए हम लोगों ने एजेंसी तय की थी वेल की, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। वो काम समय पर नहीं कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 बार उन्होंने काम पूरा करने का लक्ष्य उन्होंने बदला है और अब तक वो पूरा नहीं हुआ। उसके बन जाने से बिहार में 500 मेगावाट बिजली का अपना उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। तो मेरा विनम्र आग्रह है कि वेल के लोगों को हम लोग तो कहते कहते थक गए, अब एक ही आसरा आप हैं, आप उनको कहिए ताकि वो जल्दी पूरा करें। और एक इसी अवसर पर आग्रह है, आपने एक अच्छी योजना की शुरुआत की है, वह यह है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी समीक्षा करते हैं। अगर कोई समस्या राज्य के स्तर पर है उसके क्रियान्वयन में, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के अधिकारियों से बातचीत करते हैं, उससे बहुत फायदा हो रहा है। मेरा एक ही विनम्र आग्रह है कि कुछ राज्य की योजनाएं जो केंद्र की एजेंसियों के पास लंबित है, कृपा करके उसकी भी आप समीक्षा अगर कर देंगे तो मैं समझता हूं उसमें पूरी गति आ जाएगी और बरौनी जैसा जो बिजली का केंद्र है, जनरेशन प्लांट है, वो तेजी से चालू हो जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज इन सारी योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपका इस ऐतिहासिक धरती पर मैं स्वागत करता हूं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बिहार के विकास के लिए जो भी आवश्यक कदम हैं वो अपने स्तर से जरूर उठाएंगे। हमने मिलकर के भी आपसे ज्ञापन भी दिया है, माननीय वित्त मंत्री जी से भी मुलाकात कर दिया है, सब चीज आपकी जानकारी में है। और हमारे साथी लोग जो बैठे हुए हैं वो सबको जानकारी, तो सब लोग मिल करके बिहार का जो कल्याण है वो करा दीजिए। हमारे नंद किशोर जी बैठे हुए हैं, पथ निर्माण मंत्री, एनएच में 1000 करोड़ उसके उन्नयन में हम लोग लगा दिए, अभी तक वो पैसा लंबित है। तो ये सब चीज आप सब लोगों को मालूम है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन चीजों पर आपकी नजर है और आप जरूर उस पर गौर फरमाएंगे और बिहार के लोगों के हित में, बिहार के विकास में आप जरूर उचित निर्णय लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद माननीय श्री नीतीश कुमार जी। सम्माननीय प्रधानमंत्री, जनप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, Well, the battle for Bihar is well and truly underway now. The two arch rivals, Prime Minister Modi and Nitish Kumar, their Chief Minister of Bihar, sharing the stage ahead of the big battle for Bihar. In fact, Prime Minister Modi will be speaking in just a short while from now. But but all eyes certainly are trained on that big rally that will be held later in the day in Muzaffarpur. In fact, a lot of preparations are on for their Union Minister. Radha Mohan Singh is in fact overseeing all the preparations in Muzaffarpur, and what we understand is that there is a huge security cover for the Prime Minister in Bihar. Narendra Modi has got up to speak, the Prime Minister there. Let's listen in. बिहार के राज्यपाल श्रीमान केशरीनाथ त्रिपाठी जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सुरेश प्रभु जी, श्रीमान रामविलास पासवान जी, श्रीमान रविशंकर प्रसाद जी, श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, श्रीमान पीयूष गोयल जी, इसी धरती के संतान और मेरे मंत्रिपरिषद के साथी श्रीमान रामकृपाल यादव जी, श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी, यहाँ के सांसद श्रीमान शत्रुघ्न जी, राज्य विधानसभा के नेता श्रीमान नंदकिशोर जी, विधान परिषद के नेता श्रीमान सुशील कुमार मोदी जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों,
आज यहां अनेक शिलान्यास के और उद्घाटन के कार्यक्रम हुए। हम सब इस बात पर अब भली भांति समझने लगे हैं कि विकास का कोई पर्याय नहीं है। अगर हमें गरीबी से लड़ना है तो विकास करना होगा, हमें बेरोजगारी से लड़ना है तो विकास करना होगा, हमें अशिक्षा से लड़ना है तो विकास करना होगा, हमें आरोग्य की सुविधाएं मुहैया करनी होगी, हमें विकास करना होगा। सब दुखों की अगर कोई एक दवाई है, वो दवाई है विकास। और ये अच्छी बात है कि इन दिनों राज्यों के बीच भी विकास को लेकर एक स्पर्धा का माहौल बनता चला जा रहा है। राज्यों को लगने लगा है कि वो राज्य उस बात में मेरे से आगे निकल गया, अब हम कुछ कोशिश करेंगे, हम आगे निकल जाएंगे। आखिरकार देश आगे बढ़ाना है तो राज्यों के विकास से ही आगे बढ़ने वाला है। और इसलिए देश के विकास के लिए राज्यों का विकास, इस मूल मंत्र को लेकर के केंद्र हो या राज्य हो, सबने मिलकर के काम करना, काम को आगे बढ़ाना, ये आवश्यक होता है। विकास के कामों में राजनीति कितना नुकसान करती है, उसका ब्यौरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से दिया। अटल जी के समय में जो काम 6 महीने मिलते तो पूरा हो जाता, उसको पूरा होते होते आज 2015 आ गई। और मैं नीतीश जी की बात से सहमत हूं कि अगर अटल जी की सरकार का चुनाव थोड़ा देर से होता, 6 महीने मिल जाते, तो उस समय अटल जी के मार्गदर्शन में, और यहीं के रेल मंत्री थे नीतीश जी, ये काम पूरा हो गया होता। वो सही बोल रहे हैं। लेकिन बाद में सरकार बदल गई और रेल मंत्री यहां से ऐसे आए कि काम को रोक दिया गया और हमारे आने के बाद उसको चालू किया गया। अब राजनीति जो करते हैं करें, लेकिन नुकसान बिहार का हुआ, बिहार की जनता का हुआ। नीतीश कुमार जी की इस व्यथा के साथ मैं भी अपना स्वर मिलाता हूं। लेकिन मैं इस मत का हूं कि हमें विकास की यात्रा को निरंतर गति देना चाहिए। आज नीतीश जी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि भाई आईआईटी है, लेकिन हमें यहां के आवश्यकताओं के अनुसार और यहां की क्षमता के अनुसार नई नई फैकल्टीज को लाना चाहिए।
मुझे विश्वास है कि नया परिसर की क्षमता इतनी है, 500 बीघा भूमि है, ये होगा। और हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि दुनिया में जो टॉप क्लास फैकल्टीज हो उनको भी भारत में लाया जाए, ताकि भारत के हमारे युवकों को देश के लिए जो आवश्यक है, जिस राज्य में आईआईटी है वहां जो आवश्यक है, उन विषयों को बल दिया जाए। सिर्फ दिल्ली में बैठ करके योजनाएं बनाने का वक्त पूरा हो गया। अब तो राज्य के मन में जो भाव उठते हैं, राज्य की आवश्यकताएं होती हैं, उसके अनुसार ही दिल्ली को भी ढलना चाहिए। ये मेरी सोच है और मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। आज यहां एक इंक्यूबेशन सेंटर का प्रारंभ हो रहा है। ये इंक्यूबेशन सेंटर मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा नजराना है। आईआईटी कॉम्प्लेक्स इमारत से भी ज्यादा ये इंक्यूबेशन सेंटर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हमारा इनिशिएटिव है। इसलिए मैं ये इस बात से कन्विंस हूं, मैं जिस प्रदेश से आया हूं, लोगों ने परिश्रम किया होगा, परमात्मा ने कृपा की होगी, लक्ष्मी ने वहां जाना पसंद किया होगा, लेकिन ये भूमि है जहां सरस्वती वास करती है। यहां के नौजवान तेजस्वी हैं और मैं मानता हूं यहां की जो तेजस्विता है वो पूरे हिंदुस्तान को तेजस्वी बना सके, ऐसी तेजस्विता इस धरती पर है। और मुझे विश्वास है कि ये जो इंक्यूबेशन सेंटर हम सोच रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, वो भी एक विशेष मकसद से है। आज हम देख रहे हैं कि मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ सेक्टर, ये सिर्फ डॉक्टर नाड़ी पकड़ लें, 4 सवाल पूछ लें और निर्णय नहीं होता है कि बीमारी क्या है, दवाई क्या दे। ढेर सारे मशीनों के अंदर से शरीर को गुजारा जाता है, भांति भांति मशीनों को शरीर पर लगाया जाता है, उसके बाद बीमारी तय होती है, उसके बाद उपचार का रास्ता तय होता है। पूरे हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी का प्रभाव इतना बढ़ा है, इतने नए नए संसाधनों का आविष्कार हो रहा है, और आज भारत को, गरीब व्यक्ति को इन साधनों को अगर मुहैया कराना पड़े तो विदेशों से लाना बहुत महंगा पड़ रहा है। इस पटना की धरती पर बिहार के मेरे नौजवानों की प्रतिभा को एक अवसर दिया जा रहा है कि इस इंक्यूबेशन सेंटर में प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मैकेनाइज के साथ किस प्रकार से हम हेल्थ सेक्टर की नए